So hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy, Jai Hind, and today we are going to discuss an important topic which relates to the Indian polity, that is the criminalization of Indian politics. Now recently the Supreme Court has chastised the government for allowing, or rather not, fulfilling its constitutional responsibility of not letting tainted candidates enter the Parliament of India, and that is what we are going to discuss in today's video lecture, right? So what is going to be the course of this lecture? We are going to cover this topic through these 5 R's, and what are these 5 R's going to be? That is the reasons for the criminalization of Indian politics, what has it resulted into, the relevant law and authority which is related to it, and what can be the recourse, and lastly the remedy, or what could be a futuristic angle in the form of some solutions to this challenge or this menace of criminalization of Indian politics. So let's get started. So first of all, if we talk about the concept, अगर हम इस concept की बात करें, that what exactly is criminalization of politics. But before we delve into the criminalization of politics, let me first briefly acquaint you with the idea of politicization of criminals. Now see, the point is, when we talk about these two things, that is the politicization of criminals. So in this particular aspect, देखो starting में हुआ क्या, when this phenomena started developing in the arena of Indian political space, what used to happen is that the political leaders, they used to hire goons, or they used to hire the so-called muscle men, the men who were having criminal background or who were the dadas, quote unquote, of their locality. तो उससे क्या हुआ, that caused a phenomena that is called politicization of criminals. ठीक है कि इन criminals की वजह से या इन criminals के दम पे ये leaders जो हैं, they started winning elections, they started to gain an edge over their rivals in the election. कि जो clean candidate है या जो कोई जो सामने rival खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ जो है इन political leaders ने क्या करना शुरू किया कि they started hiring these so-called goons, or whatever you want to call them, the persons who were having criminal history, the muscle men of that local area, कि उनके दम पे ये जो है चुनाव जीतने में उनका सपोर्ट लेना शुरू करना, उनके वजह से लोकल मोबिलाइजेशन जो है वो करना, साथ ही साथ इवन तब तो उस जमाने में बैलेट पेपर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे, ईवीएम्स नहीं होती थी, तो बूथ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वो सारा जो है ये पॉलिटिकल लीडर्स किसके बेसिस पे करते थे या किसके सपोर्ट से करते थे, थ्रू द क्रिमिनल्स. सो दैट लेड टू अ फिनोमेना दैट वी कॉल एज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, राइट. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज दैट कि इन क्रिमिनल्स को ये लगा कि इफ वी आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, इफ the criminal is acting as a catalyst and enabling the politician to win an election, he's enabling this politician to win the election. So these people started feeling that if we can make this politician or make this leader win the election, why not we ourselves take that opportunity of winning that election? Why not we ourselves get into the political fray, get into the contestation of elections as a candidate, and take that power ourselves only? So that led to a phenomena, that is the entering of these criminals into the political space of the country, which now we call that the criminalization of politics. That is, you had these so-called muscle men with criminal antecedents और criminal background कि इनको ये लगने लगा कि भाई अगर हम चुनाव जितवा सकते हैं दूसरे political leaders को, तो उससे बेहतर तो ये होगा कि उनको चुनाव जिताने की बजाय हम खुद जो है चुनाव लड़ें और खुद जो है पावर में आ जाएं, सत्ता में आ जाएं, लेजिस्लेचर में एंटर कर जाएं, चाहे एमएलए बन जाएं, चाहे एमपी बन जाएं,
है ना? तो दैट इज हाउ दिस फिनोमिना इज इंटर रिलेटेड व्हेन वी टॉक अबाउट द फिनोमिना स्टार्टिंग विद पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड ऑल द वे लीडिंग अप टू द फिनोमिना दैट वी कॉल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और इसी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर जो है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है पार्लियामेंट को भी, पार्लियामेंटेरियंस को भी, सरकार को भी, कि आप लोगों ने क्या इफेक्टिव कदम उठाए हैं। इतनी बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है जजमेंट्स अलग अलग आ चुकी हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेके, राइट? सो आई बिलीव आपको बेसिक जो है वो काफी क्लियर हो गया यहां से, यू हैव गॉट द बेसिक। नाउ वी आर गोइंग टू delve into the issue at hand, right? So simply when we talk about the criminalization of politics, it simply means, as I've told you, that the participation of criminals in politics, which includes that criminals can contest in the elections and get elected themselves as members of the parliament and the state legislature. MLA भी बन सकते हो, MP भी बन सकते हो, सिंपल सी बात है। और once you become an MP or an MLA, now since the executive and the legislature, they have a sort of intermix, because you have the executive, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती है, जो आपके मंत्री परिषद आता है, वो कहां से आता है? वो लेजिस्लेचर से ही आता है। MLA जो बन के जाते हैं उन्हीं में से लोग कुछ जो हैं वो चुन के फिर क्या बनते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में। और पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं मेंबर पार्लियामेंट बन के, उनमें से चुन के आते हैं कौन? हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस तरीके से ये देखो कहां से कहां एक्सटेंड हो गया। ये क्रिमिनल्स जो हैं, दे एंटर द लेजिस्लेचर, दे बिकेम द लॉ मेकर्स आल्सो, एंड सम ऑफ देम आल्सो मैनेज टू एंटर द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। सो दैट इज अ रियली सॉरी और सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है? और ये जो है इट टेक्स the place primarily due to the nexus between the politicians and criminals। देखो यहाँ पे जो nexus की बात है ना, वो यही है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये दो फिनोमिना के। इसमें देखो this particular cycle, this shows that there is certain nexus, और ये nexus किसके बीच में है? Between the politicians on one hand and the criminals on the other hand। और ये अब नेक्सस जो है इट हैज बिकम सो इंटरट्वाइंड दैट नाउ दीज टू हैव गॉट सो मच इंटरमिक्स्ड कि पता ही नहीं है कि भाई कौन सा जो है पॉलिटिशियन जो है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या कौन सा क्रिमिनल जो है ही हैज नाउ कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू, और ही इज डॉनिंग द हैट ऑफ अ politician। So that is the nexus, and that is how this all picture is interplaying in the Indian political space, right? चलो, so that is बेसिकली द रीजन। और इसके साथ देखो लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसके साथ साथ मसल पावर के साथ साथ मनी पावर भी है। यू हैव दीज टू डायमेंशंस टू इट, दैट इज मनी एंड मसल पावर। के पैसे का इस्तेमाल जो है ऑब्वियसली अगर किसी के पास इन्फ्लुएंस है मनी की, एंड ऑल्सो ही हैज मसल पावर के वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो देन इट गिव्स एन एडवांटेज टू विन द इलेक्शंस, ठीक है? इसके साथ साथ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन, क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी फायदा है, या रादर कह लो कि अब क्रिमिनल्स खुद जो हैं वो लीडर्स बन के या पॉलिटिशियंस बन के फ्रे में हैं, तो डेफिनेटली दे विल नॉट ब्रिंग इन अ लॉ टू कट देयर ओन हैंड्स, राइट? दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। चलो, देन मूविंग टू द रिजल्ट ऑफ इट, सर्टेनली the status report filed by the High Court in 2020 lists a total of 4,800, more than 4,800 cases which are pending against MPs and MLAs across the country। 2004 के बाद 2009, 2014, 2019, all the Lok Sabha elections in the country, सभी general elections में to the Lok Sabha, there has been a steady increase in the number of member of parliaments who have criminal cases pending against them, ठीक है? That is what it has resulted into। जो हमने ये पूरा भी डिस्कस किया ना criminalization of politics, उसकी वजह से हुआ ये है कि 2004 से लेके 2019 तक कॉन्स्टेंटली ये ग्राफ जो है इंक्रीज किया है कि जो नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, दैट हैज इंक्रीज्ड, राइट? देन इट इज अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सर्टेनली इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है कंडक्ट करना कंट्री में। अगर टेंटेड कैंडिडेट्स, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके खिलाफ हीनस क्रिमिनल केसेस भी पेंडिंग है, दे आर एंटरिंग इनटू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दे आर बिकमिंग द लॉ मेकर्स, देन सर्टेनली दैट अफेक्ट्स that goes against the free and fair election spirit also,
ठीक है, क्योंकि देखो एक क्लीन कैंडिडेट जो है, ही विल नॉट स्टैंड अ चांस टू विन अगेंस्ट सच अ कैंडिडेट हु इज हैविंग दैट मच मसल पावर, दैट मच मनी पावर, हु विल डिस्टॉर्ट द लेवल प्लेइंग फील्ड। और उससे नुकसान किसका हो रहा है? पूरे देश की डेमोक्रेटिक ईथॉस का, आपका और मेरा, हमारे गवर्नेंस के फ्रंट पे भी इट अफेक्ट्स, दैट इज इट अफेक्ट्स गुड गवर्नेंस ऑल्सो, राइट? बिकॉज सर्टेनली अगर ये फ्रेम में उतर के पार्लियामेंटेरियन बन रहे हैं तो इनके पीछे जो है इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। दे आर नॉट देयर टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री, दे सर्टेनली हैव देयर ओन मॉनेटरी एंड अदर वेस्टेड interests for which they are fighting elections in the first place, right? Then it affects the integrity of civil servants also। कि अब देखो सिंपल सी बात है, जब हम यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स वाली बात कर रहे हैं तो यू सिंपली नो दैट द पॉलिटिशियंस दे बिलोंग टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि लेजिस्लेटर्स जो हैं उन्हीं में से निकल के आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी जो कि आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगी। और इसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नीचे कौन ऑपरेट करेगा? यू, द एस्पिरेंट्स हु विल टुमारो बी अ पार्ट ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। You as a part of the bureaucracy tomorrow will be very much operating under the aegis, under the leadership of the political executive. And just imagine if the person who is sitting in the chair of the political executive, that is the Mr. Minister, the honorable minister who is sitting here, or for that matter the legislator also who is sitting in the parliament, he is having a criminal background. And he is having pending cases also. He is having pending criminal cases and he is having a criminal background. और आप भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करके आए हो, आपने क्या पढ़ा है? एथिक्स। आपने क्या पढ़ा है? इंटेग्रिटी। आपने क्या पढ़ा है? प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। अब ये देखो ये कितना बड़ा मिसमैच है। यू हैव एज अ लीडर और एज योर बॉस द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हु इज हैविंग क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हर, एंड यू हैविंग गॉन थ्रू द एथिक्स, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, एप्टीट्यूड एंगल ऑफ इट, बीइंग मेड टू सर्व अंडर दिस पॉलिटिशियन। वोंट यू थिंक इट विल कॉम्प्रोमाइज योर इंटेग्रिटी एज एन इंडिविजुअल? Won't you think it will compromise the complete bureaucratic setup, the complete idea of having a bureaucracy which is there to serve the people? That is also affected, and that is why it is correlative here. ठीक है, चलो, so that is how it affects the integrity of the civil servants also, and it causes social disharmony also, कि समाज में भी जो है डिसहार्मनी फैलाने के पीछे या फैलने के पीछे ये बहुत बड़ा एक कारण है, right? So that is what it will result into. Then if we talk about quickly the relevant laws and the relevant authority here, so the Constitution of India has left it to the Parliament. संसद के ऊपर ये जिम्मेदारी जो है डाल दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई आप जो है लॉ बना के इसमें प्रोविजंस के लिए जो है यू प्रोवाइड फॉर दोज प्रोविजंस, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी सच express provision, right? But then the Representation of the People's Act of 1951, which you also call the RPA, which I believe you have read it, right? So the Representation of People Act, इसमें section 8 जो है वो यहाँ पे रेलेवेंट है हमारे लिए डिस्कस करना, क्योंकि ये जो है क्राइटेरिया सेट करता है टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज और अ क्रिमिनल ऑफेंस। और इसमें जो है जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन कन्विक्शन, ये कन्विक्शन जो है अगर आपकी 2 साल से ज्यादा की आती है, अगर आपको किसी क्रिमिनल केस में 2 साल से ज्यादा का जेल टर्म हुआ है, देन द लॉ प्रोवाइड्स दैट यू विल बी बार्ड और योर मेंबरशिप फ्रॉम द हाउस इज डिस्क्वालिफाइड, यू आर डिस्क्वालिफाइड एज बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस, and you cannot contest elections for a term of 6 years. 6 साल के लिए जो है आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते उसके बाद, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो यहाँ पे है रेलेवेंट है। फिर द लॉ डज नॉट बार इंडिविजुअल्स हु हैव क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम, कि भाई अगर कन्विक्शन नहीं हुई है कोर्ट ऑफ लॉ से तो सर्टेनली देखो यहाँ पे ये एंगल आ जाता है। I'll explain few things here itself कि इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें हम फॉलो करते हैं जो सिस्टम कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो भाई इसका मतलब ये है कि यू एज एन एमपी
cannot be disqualified from the house until you are proven guilty, that is until your conviction is there. ठीक है, और इसमें एक और एंगल जो आता है दैट इज ऑफ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी कैंडिडेट्स आपस में फील्ड किए हैं, मान लो बीजेपी ने एक कैंडिडेट फील्ड किया और एक कांग्रेस ने फील्ड किया, तो आपस में वो क्रॉस एफआईआर फाइल कर देंगे एक दूसरे के अगेंस्ट एज अ पार्ट ऑफ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जस्ट टू एलिमिनेट देयर राइवल और जस्ट टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स भी है. और जो हम ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला जूरिस्प्रूडेंस में हम जो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल, इसकी वजह से भी ये ठीक है कि फाइन अंटिल योर कन्विक्शन कम्स देन अंटिल देन यू आर very much able to become a member of the parliament, also continue as a member of the parliament and even become a minister, right? लेकिन उससे नुकसान ये है कि अगर outrightly दिख रहा है that the crime is of a very heinous kind, then certainly it is troublesome, it is problematic, right? So that is what the law provides for. Fine. Then moving to the authorities which are involved here, तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर एक्सप्रेसली आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट द रिस्पांसिबिलिटी और हैज गिवन इट द रिस्पांसिबिलिटी टू कंडक्ट फ्री फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, है ना. आर्टिकल 324 हम पढ़ते हैं संविधान में. अब यहाँ देखो इलेक्शन कमीशन का रोल किस तरीके से यहाँ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. दैट इज व्हाई बिकॉज द इलेक्शन कमीशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज इनॉर्मस पावर्स एट इट्स डिस्पोजल. अगर इलेक्शन कमीशन अपनी पे आ जाए, जो कि श्री TN शेषन जी के समय में इलेक्शन कमीशन आया भी था, देन द Election Commission can play a very proactive role in ensuring that we have, or you can say we have certain mechanisms, or we effectively have to some extent हम इस चीज से लड़ सकते हैं कि भाई इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से हों, और जो भी एफिडेविट्स रिक्वायर्ड हैं फाइल करने के लिए, या जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स या क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है डिस्क्लोज करना है एक कैंडिडेट ने, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है बड़े सख्ती से उनको ये निर्देश दे और इस चीज का पालन करवाए. इट गेट्स दोज थिंग्स एनफोर्स्ड वेरी स्ट्रिक्टली, राइट. दैट इज हाउ द इलेक्शन कमीशन एट लीस्ट कैन प्ले अ वेरी प्रोएक्टिव रोल. Then when it comes to the parliament, के under article 84 and article 174 of the constitution, the power of the parliament to prescribe for qualifications for MPs and MLAs. ठीक है, ये दो articles के तहत state legislature and the parliament can do so. And former Supreme Court Judge Justice Madan B. Lokur has said that के the assumption that the political parties would not cooperate, the election commission and the judiciary would have to play their parts. And he said that the election commission has vast powers, जो हमने डिस्कस करा कि भाई देखो ठीक है, इसमें देखो the whole point is that who will bell the cat. यहाँ पे मैं ये analogy, I want to bring in this analogy that who will bell the cat, because essentially when you have these politicians who themselves are quote unquote having criminal cases pending against them, certainly you cannot expect of them to bring in a law to curtail their own existence as legislators. Why would they do that? What is the incentive for these people to bring in such a law? And that is why Justice Madan B. Lokur had said that it will not be, it would not be very much, prudent or practical or pragmatic to expect for the electorate to expect, or for the citizens for that matter to expect the parliamentarians to bring in such a law. And that is where it becomes all the more important for the Election Commission of India and the Indian judiciary at the same time to play the role of a savior, right? Not just a savior, but it is their constitutional responsibility as well. ठीक है, चलो तो ये हो गई बात कुछ authorities की यहाँ पे related. Now coming to the recourse of it, that however we have discussed it, but now we'll take a look at the some case laws. We'll take a look at quickly some case laws which are relevant here. तो 2002 में ADR, that is Association for Democratic Reforms के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एफिडेविट्स फाइल करने पड़ेंगे. एफिडेविट जब आप फाइल करते हो तो देन यू आर पुटिंग a piece of information which you are swearing by, right? That is जितने भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो आप इसमें डिटेल करके बताओगे ताकि लोग एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो मेक कर सकें व्हेन दे आर एक्सरसाइजिंग देयर बैलेट, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट देन came the Lily Thomas and Lok Prahari case in July 2013, और इसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक प्रोविजन दैट अलाउड MPs and MLAs to continue their membership in a house by merely filing a
अपील अगेंस्ट देयर कन्विक्शन। देखो होता ये था कि हाई कोर्ट से मान लो कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई सिटिंग एमएलए है, उसकी कन्विक्शन हो गई। अब उसकी कन्विक्शन हो गई तो उसकी जो है सदस्यता वो खारिज होनी चाहिए नहीं, तो उस अपनी मेंबरशिप को या अपनी लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की या पार्लियामेंट की मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई होने से बचाने के लिए वो क्या करते थे, सर्टेनली उनके पास ये राइट है कि वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट से जजमेंट आई है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो है जा सकते हैं, लेकिन अपील। पर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस जजमेंट से पहले 2013 की लिली थॉमस की जजमेंट से पहले क्या होता था कि जैसे जैसे अपील ऊपर चली गई तो आपके ऊपर कोई भी जो है उसका असर नहीं हुआ। मतलब कन्विक्शन आपकी हाई कोर्ट से आई लेकिन आपने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो देयर वाज नो इफेक्ट एसेंशियली विद रिस्पेक्ट टू और विद रिगार्ड्स टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन और एनी बारिंग ऑफ द पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग फर्दर इलेक्शंस। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रद्द कर दिया और ये बोला कि भाई दिस मेंट के एमपीज एंड एमएलएज दे कुड बी डिस्क्वालिफाइड immediately on the conviction and sentence of more than 2 years। आप अपील करो, ठीक है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप एक लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई जैसे ही आपकी कन्विक्शन आई 2 साल से ज्यादा की, आप 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट हो गए, दैट वेरी मोमेंट यू स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, राइट। देन एक PUCL का केस था सितंबर 2013 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा टू प्रोवाइड द नन ऑफ द अबव चॉइस, दैट इज द नोटा, कि बहुत बार ऐसा देखा गया है या इलेक्टोरेट के पास ऑप्शन ही नहीं है, द पीपल डोंट हैव एन ऑप्शन। 1 2 3 4 नंबर जितने भी कैंडिडेट्स हैं मोर और लेस दे आर हैविंग 19-20 का फर्क है, वो कहते हैं ना सभी जो हैं all the people are having some sort of criminal background। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई एक none of the above का ऑप्शन भी प्रोवाइड करो कि अगर लोग जो है सभी को रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमें इनमें से किसी को भी जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं इलेक्ट करना, then they should have that choice in the EVM itself, right? So that is the September 2013 PUCL case। Then you have next मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे ट्रायल कंडक्ट करें, क्योंकि हमारे नहीं तो क्या होता है तारीख पे तारीख, और कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि मेंबरशिप जो है व्यक्ति की 5 साल का कार्यकाल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और लोकसभा का, ठीक है। तो 5 साल का कार्यकाल जो है एमपी या एमएलए वो पूरा कर लेता है, केस जो है वो 10-12 साल तक चलता रहता है। तो इफेक्टिवली हुआ क्या कि भले ही उसकी कन्विक्शन मान लो 12 साल बाद आई भी, तो उसने तो ऑलरेडी पिछले तो 2 टर्म्स या 1 टर्म अपना ऑलरेडी पूरा कर लिया। तो वो जो पिछले सालों में नुकसान हुआ या कह लो जो पिछले सालों में इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क आया, वहां उसके ऊपर तो कोई रेमेडी नहीं है ना। तो दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द ट्रायल कोर्ट्स टू होल्ड डे टू डे ट्रायल इन क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज एंड कंप्लीट इट विद इन 1 year from framing of charges, right? Then we come to the Manoj Narula case of August 2014। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि भाई लेजिस्लेटर्स तक तो बात ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनके एडवाइस पे प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे लोगों को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट ना करें, ठीक है। इससे भी एक ये कह लो कि स्ट्रेट very loud and clear message जाएगा that yes, the government is not inducting people into its council of ministers who are having criminal cases pending against them। That is also one of the moral responsibilities that the prime minister and the chief minister should be having, being the head of the state at the union and at the state level, right? Then public interest foundation case of March 2016, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को whether framing of charges in heinous crimes should be a ground to disqualify an MP or MLA, ठीक है। and this also meant whether person against whom charges framed in serious offenses be debarred from contesting elections, right? Then came February 2020 और ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे शुड स्टेट इट वेरी क्लियरली अप फ्रंट ऑन देयर वेबसाइट्स ऑल्सो इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो, कि जो वो कैंडिडेट्स फील्ड कर रहे हैं उनके कितने एसेट्स हैं फाइनेंशियली, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। तो दैट वाज द February 2020 केस। और इसी February 2020 केस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाते हुए कहा है सरकार को कि आप अभी भी जो है
सही तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते, राइट? चलो, देन अर्लियर ऑर्डर्स दे स्टेट दैट ईच कैंडिडेट शैल सबमिट अ स्वॉन एफिडेविट, जो हमने बात कर ली. देन ईच कैंडिडेट शैल इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी इन राइटिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हिम और हर, है ना, एंड द पार्टी शैल पुट इट ऑन द वेबसाइट. और ये वेबसाइट और इसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, क्योंकि देखो एक तो बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रॉम अर्लियर इंक्रीज ऑफ डिजिटाइजेशन, कि आज की डेट में विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, the outreach the political parties and the political candidates are having is immense on social media platforms. और इसलिए ज़रूरी है कि पार्टी की वेबसाइट पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे, सोशल मीडिया पेजेस पे भी जो हैं, ये क्लियरली पता होना चाहिए कि किस कैंडिडेट को आप फील्ड कर रहे हो और किस कैंडिडेट को जिसको आपने फील्ड किया है उसके क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उसके खिलाफ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है इन द कोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है? और इसी चीज़ को जो है पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो सही तरीके से नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको चैस्टाइज किया है. देन व्हाई डिड द कोर्ट पास सच एन ऑर्डर? अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो रेलेवेंट है आपके लिए जानने, कि जो मैं बात इनिशियली इन द पार्ट ऑफ द वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि 2004 to 2019 देयर हैज बीन अ स्टेडी, अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्संस विद क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम एंटरिंग द पार्लियामेंट एज एमपीज. तो ये नंबर देखो 2004 में था 24%, दिस इज 24%. Then it increased in 2009 to 30%, 2014 में 34%, and currently in the present लोक सभा 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूट हुई उसमें 43% of MPs are having criminal cases pending against them. So you see the graph is constantly or steadily going up. That means that the Indian political space is witnessing an increase in the number of people who are becoming your elected representatives who are criminals. And that showcases कि किस क्वालिटी का लेजिस्लेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आप जो है कितना न्याय जो है उसकी अपेक्षा रख सकते हो अपनी संसद से. क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं या कह लो जो लॉ ब्रेकर्स हैं वो लॉ मेकर बन जाएंगे. When the law breaker themselves are becoming the lawmakers, then you can very well imagine what is going to be the scenario in the parliament of the country, right? चलो अब देखो, इसमें हम रेमेडी या वे फॉरवर्ड डिस्कस करें उससे पहले एक चीज समझो, प्लीज पे अटेंशन हियर. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. इसकी ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत लोग कर देते हैं, बहुत सभी डिबेट्स में भी इसकी ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं बहुत आसानी से, लेकिन दैट विल बी सिंपली वेरी सिंपलिस्टिक एंड ट्रीटिंग इट इन अ वेरी ट्रिवियल मैनर. अगर हम बोलें कि एक कोई बॉडी या कोई एक रिफॉर्म की वजह से इसको ट्रीट किया जा सकता है चैलेंज को, दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज. और यू कैन से दैट देयर आर 3 मेजर एस्पेक्ट्स which are involved. What are the 3 major aspect? पहला तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है वो है accused candidate who is having the accused candidate who is having some criminal case pending against him, who is fighting the election. फिर दूसरा आ गया कि भाई अब ये अक्यूज कैंडिडेट तो है, लेकिन इस अक्यूज को कैंडिडेट तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रही है ना. तो सेकंड एस्पेक्ट आ गया, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी which is fielding that candidate. Right? और तीसरा एस्पेक्ट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, कि ठीक है एक अक्यूज्ड है जिसको कैंडिडेट बनाया इस पॉलिटिकल पार्टी ने, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने इस कैंडिडेट को फील्ड किया, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है या क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट पेंडिंग है, उसको चुना किसने? यहां पे बात आ जाएगी इलेक्टोरेट की. electorate, or you can say the voters, that is the citizens.
So when we talk about the electorate or the citizens, then precisely you and I are responsible for these accused persons to allow them to enter the parliament, or for that matter the state legislatures. So we are also accountable, we are also responsible equally with these political parties कि भाई हम लोग भी तो जो हैं वो ये अलाउ कर रहे हैं इनको इलेक्ट करके, इनको अपना वोट डाल के कि ये लोग जो हैं जाके बन जाएं लेजिस्लेचर का पार्ट, ठीक है। और एक ADR की रिसर्च I want you to share a research that was done by Association for Democratic Reforms। तो एक ADR की रिसर्च जो है वो क्या कहती है कि this ADR research says that a person or a candidate, this is a candidate who's having criminal cases against him, or you can say with criminal background, ठीक है। इस कैंडिडेट का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है या विनिंग चांस है, दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ अ क्लीन कैंडिडेट। कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, द पर्सन हु इज हैविंग अ क्लीन बैकग्राउंड, उसके मुकाबले में दिस पर्सन, हिज विनिंग चांस इज 2 times, इट इज ट्वाइस इन 2 times the chance for winning or winning factor for this particular candidate who is clean। तो इसका मतलब ये है कि भाई इलेक्टोरेट जो है, जो सिटीजंस हैं, वो प्रेफरेंसेस को डबल देते हैं ओवर दिस क्लीन कैंडिडेट। मतलब कि फ्रेम में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कोई क्लीन कैंडिडेट नहीं होता, या हमेशा ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो हैं वो टेंटेड ही हैं। तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करो कि आपके टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी से वो क्लीन कैंडिडेट जो है वो जीत के जाए, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे दिस इज वन फैक्टर, अनदर फैक्टर इज द नेक्सस दैट वी डिस्कस्ड। अब उस नेक्सस के केस में देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट नेक्सस, जो हम एक नेक्सस की बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, क्यों, क्योंकि तभी वे फॉरवर्ड समझ में आएगा। तो वो जो नेक्सस है, दैट इज सर्टेनली बिटवीन द पॉलिटिशियंस, बिटवीन द क्रिमिनल्स, then you also have the businessmen here। Apart from the businessman, you also have the caste angle, which has some role to play here, or you can say much role to play here। कि भाई अगर ये क्रिमिनल जो है ये मेरी कास्ट को बिलोंग करता है, तो मुझे लगेगा कि ये मेरे काम करवा देगा। It will be in my favor to get this criminal elected as my MP or my MLA। और उस एंगल में ये आ जाएगा कि हाँ ठीक है, वहां पे मैं आई विल बिकम, यू नो, आई विल नॉट बी कास्टिंग माई बैलेट एज अ सिटीजन हु इज फ्री एंड फेयर, हु इज हैविंग नथिंग in consideration, which is making me take that decision in biased form। वहां पे मुझे लगा ठीक है, this person he is having some relation to my is of my caste, maybe he's having criminal cases pending against him, but फिर क्या हुआ, he will ensure that I get a job or my children get a job, or maybe if he or she will help me in getting a favorable posting, a plum posting, or transfer to my favorite area or my preferred area, or maybe if you know he could get a road to my village, then all those factors, they also come into the interplay and they also influence, and that is how this nexus is very big, and that is why I was saying this is a multi-dimensional challenge। And since it is a multi-dimensional challenge, the solution cannot be simplistic, the solution has also to be multi-dimensional। जो solution है वो भी multi-dimensional होगा, तभी आप इस चीज़ से निजात पा सकते हो। और solution की जब हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि देखो यहाँ पे you have the role in the solution part, you have the role of the Election Commission of India, you have the role of the political parties। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके लिए भी एक ही मॉरल असर्शन है दैट दे ऑल्सो शुड नॉट collectively allow such candidates to be given tickets by them
to allow and let them contest the election in the first place. क्योंकि देखो ये अगर मेस जो है क्लीन करना है तो सभी पार्टीज को कलेक्टिवली क्लीन करना है, अदरवाइज ये ऐसा, दिस इज नॉट, सी द पॉइंट इज, इट इज नॉट माई टेंटेड और माई criminal candidate versus your criminal candidate. It is collectively about the political system of the country. ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ये मॉरल असर्शन है यहाँ पे उनके ऊपर भी, और इसके अलावा साथ साथ जो है यू हैव द रोल ऑफ द सिटीजन्स एज वोटर्स, that if the voter is not choosing that candidate, then certainly the political parties, they will not be having the incentive to field in the first place a person with tainted or criminal background. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से समझने की चीजें आपको जरूरत है. That is a multi-dimensional challenge, a multi-dimensional solution, proactive approach from the Election Commission of India, voter sensitization, education and awareness campaigns to instill some sort of awareness in them, then political parties moral assertion, फिर some election reform committees have suggested the state funding of elections. अब इसमें एक और एंगल आ गया कि भाई मनी पावर जो मसल पावर के साथ साथ है, तो मनी पावर जो है उसमें उस चीज को ओवरकम करने के लिए there has been one suggestion that has been made that you provide for state funding of elections, right? So that is the debate for some other day, but yes, that can be one part of the solution. Then the judicial decisions which have suggested some of the solution parts here कि no transfer should be there of judicial officers who are hearing the cases of MPs and MLAs for their criminal matters, कि भाई उनकी ट्रांसफर जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट? क्या आप उनको इन्फ्लुएंस या जुडिशरी को इन्फ्लुएंस ना कर सको. देन द पावर ऑफ गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC टू विड्रॉ प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, कि सरकार जो है वो अगर प्रोसिक्यूशन के लिए अलाउ करती है या कोई प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन को विड्रॉ कर रही है तो वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ऑन द पॉलिटिकल बेसिस. ठीक है, तो ये कुछ जुडिशियल डायमेंशंस हैं विच आर अटैच्ड टू द सॉल्यूशन पार्ट. आई बिलीव आपको ये पूरा जो वीडियो है इसके थ्रू समझ में आया होगा. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंड देन हाउ इट इज अफेक्टिंग द करंट सिनारियो इन द कंट्री, and certainly what are the various angles related to the challenges and what could be the various parts of the multi-dimensional solution, right? So with that I would conclude today's lecture. This is certainly a very important issue for your prelims, for your mains, both the examinations, and certainly for maybe for an interview as well, right? So thank you so much, enjoy, bye bye, take care. This is Piyush signing off, bye bye.